Welcome back. So today's topic is Plato's ideal state. Before discussing, features of Plato's ideal state, let me tell you one thing: in what context he has developed his theory of ideal state. There are certain grounds, certain reasons because of which he devoted his interest in order to create in order to develop his theory of ideal state. What were the reasons? There are two reasons. Actually, Athens during his time were running after power, glory and money. ये कहता था कि there are two goods, one is unlimited goods, another one is limited goods. What are limited goods? Limited goods means मतलब for example power, glory and money, they are limited in nature. Everyone cannot have access to power, everyone cannot have access to money because they are in limited, but everyone wants power, everyone wants money, so conflict arises, crisis arises. Why? Because everyone wants power, everyone wants money, they are in limited in nature. So Plato was of the opinion we should not run after power, glory and money. Rather, we should run after unlimited goods, which are, which are in plethora, which are in abundance. So what is unlimited goods? Unlimited goods, according to Plato, is honesty, and happiness, extra such. So according to Plato, these are the unlimited goods. Everyone can be the honest, everyone can be the happy. There will अगर हर एक हैप्पीनेस के पीछे भागेगा, हर एक ऑनेस्टी के पीछे भागेगा, देयर विल बी नो क्राइसिस, देयर विल बी नो क्राइसिस एट ऑल, बिकॉज दे आर अनलिमिटेड, they are unlimited in nature. So if we will run after limited goods क्या है? Limited goods are power, money, glory. So अगर हम इन चीजों लिमिटेड गुड्स के पीछे भागेंगे, क्योंकि everyone cannot have access to money. Money is limited in nature, power is limited in nature, everyone can't have access to power, but everyone wants power, everyone wants money. When we run after power and money, so what happens is क्या होता है? क्राइसिस इमर्ज होते हैं. What happens is the emergence of crisis. So according to Plato, we should not run after the limited goods, we should run after unlimited goods. When we will run after unlimited goods, so there will not be any kind of crisis. So at that point of time, Athens were running after limited goods, that is power, glory and money. तो Athens में क्या था? क्राइसिस पैदा हो गए थे. So Athens were divided into two. Athens जो था, that become the states, that वो दो हिस्सों में बट गया था. एक the city, Athens became the city of two, city of rich and city of poor. Everyone wants power, everyone wants money, everyone wants glory. So एक दूसरों के पीछे लगे पड़े थे, और because of what? Because of which वहाँ पे एक mess like situation emerge हुई थी. So उस चीज से प्लाटो ने जब देखा कि मतलब व्हाट इज द रीजन व्हाई पीपल आर रनिंग आफ्टर पावर, ग्लोरी एंड मनी, प्लाटो केम टू नो बिकॉज इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ द रूलिंग क्लास. अगर व्हाट इज द इग्नोरेंस ऑफ द रूलिंग क्लास? बिकॉज दे आर नॉट aware of because they don't know about the unlimited goods, that is honesty, happiness and extra. So they are running after limited goods. जब वो limited goods के पीछे भागते हैं तो crisis like situation emerge होती है. And second thing वो कहता था कि second thing ये थी कि उसका एक गुरु था, उसका नाम सॉक्रेट्स था. Socrates was he was intelligent person. He would like to debate on street to know the truth. वो किसी को भी पकड़ देता था गली कोचू में
and he would start discussing in order to search the truth. So according to Plato, Socrates जो था, at that point of time Athens में क्या था, मतलब मल्टीपल गॉड्स एंड गॉडेसेस की इबादत की जाती थी, पूजा की जाती थी. सो जो सॉक्रेट्स था, ही वाज अगेंस्ट ऑफ वर्शिपिंग ऑफ मल्टीपल गॉड्स. सो वो रीज़न रहा जिसकी वजह से अथेंस के खिलाफ वहाँ की गवर्नमेंट होगी एक. और दूसरा रीज़न ये था कि सॉक्रेट्स जो था, सॉक्रेट्स कहीं ना कहीं वहाँ की अथॉरिटी को भी चैलेंज करता था, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट को भी चैलेंज करता था, बिकॉज दे वर इग्नोरेंट, दे वर रनिंग आफ्टर पावर, ग्लोरी एंड मनी. ही वाज सेइंग कि दे डोंट नो द ट्रूथ, दे शुड कम and indulge in debate and discussion in order to search the truth. But what happens is when Socrates started challenging the authority of the state at that point of time, when he started challenging the ruling clan of city state of Athens at that time, तो क्या होता है, जो वहाँ पे डिवाइन थ्योरी का डोमिनेंस था. मतलब ये समझा जाता था जो रूलर्स हैं, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, चैलेंजिंग द रूलर्स अमाउंट्स द चैलेंजिंग द स्टेटस ऑफ गॉड. सो बिकॉज ये रीजन रहे कि सॉक्रेट्स को सजा दी गई. सॉक्रेट्स को क्या सजा दी गई? सॉक्रेट्स को बताया गया कि यू शुड टेक द either take your words back, or you should take the hemlock. Hemlock was the ball of poison. उसको तो सॉक्रेट ने कहा I will never move away from the truth. I will rather prefer to take the hemlock, that is ball of poison. So सॉक्रेट्स को वहाँ के रूलर्स ने हेमलॉक दिया, जो सॉक्रेट्स ने पिया और सॉक्रेट्स मर जाता है. और दिस सिचुएशन शॉक्ड, मतलब ये जो सॉक्रेट्स को इन्होंने मार डाला जहर का प्याला देके, ये प्लाटो के माइंड सेटअप को बहुत ज़्यादा मतलब शॉक किया. प्लाटो शॉक में चले गया कि इतने इंटेलिजेंट पर्सन को आखिर इन इग्नोरेंट लोगों ने कैसे कत्ल कर दिया. तो उसने यही जाना कि अगर इफ the ideal state would be ruled by the philosopher king, by the person with reason, तो वो कभी सॉक्रेट जैसे इंटेलिजेंट पर्सन को, सॉक्रेट जैसे महान पर्सन का कत्ल कभी नहीं करते. और वही रीज़न था कि इसने कहा कि आइडियल स्टेट होना चाहिए, जो परफेक्ट स्टेट होना चाहिए. वो उस आइडियल स्टेट में जो रूलर होने चाहिए वो परफेक्ट होने चाहिए, वो नॉलेजेबल होने चाहिए, सो डैट दे विल वो नॉलेजेबल होने चाहिए, वो इनफैलिएबल नहीं, वो इनफैलिएबल होने चाहिए, यानी कि उनमें किसी किस्म का एरर नहीं होना चाहिए, सो डैट स्टेट विल रन स्मूथली. और इन फ्यूचर किसी इंटेलिजेंट सॉक्रेट्स जैसे इंटेलिजेंट इंसान का कत्ल ना हो. सो बिकॉज दैट इज द बैकड्रॉप बिकॉज ऑफ विच ही डेवलप्ड हिज थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट. So let's move to the features of his theory of ideal state. इसके क्या फीचर्स हैं आइडियल स्टेट के? let's discuss one by one. I hope आपको ये समझ आ गया होगा. पहला है आइडियल स्टेट इज रूल्ड बाय द फिलोसफर. मतलब इसका आइडियल स्टेट टू बी रूल्ड बाय द फिलोसफर, टू बी रूल्ड बाय द परफेक्ट पर्सन, जो इसकी स्कीम ऑफ एजुकेशन से निकल के गुजरा हो और वो उसमें किसी भी किस्म का एरर ना हो, वो जाहिल किस्म का इंसान ना हो जो सॉक्रेट जैसे वाइज पर्सन का कत्ल कर दें. सो दूसरा है स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन प्रिपेयर्स 3 क्लासेस. इसने अपने अपने आइडियल स्टेट में एक थ्योरी ऑफ एजुकेशन भी दिया है. उस थ्योरी ऑफ एजुकेशन से ये 3 क्लासेस पैदा करना चाहता था. और वो 3 क्लासेस कौन थे? वो थे रूलिंग क्लास, सोल्जर क्लास और प्रोड्यूसिंग क्लास. It is because of his system of education,
3 क्लासेस पैदा होते थे फॉर द सेक ऑफ हिज आइडियल स्टेट। सो इसकी आइडियल स्टेट में 3 क्लास इमरजेंस ऑफ 3 क्लासेस होती है। किस किस की? रूलिंग, प्रोड्यूसिंग एंड सोल्जर क्लास। इसकी आइडियल स्टेट में 3 क्लासेस इमर्ज होते हैं, डेट इज रूलिंग क्लास, सोल्जर क्लास एंड appetite class. So it is second feature, and third feature is state control over art and literature. इसके ideal state में strict censorship of art and literature था। ये इसने स्पार्टा से लिया था। ये नहीं चाहता था कि कुछ something bad should go in the hands of the youths. So ये चाहता था कि स्टेट अच्छे से जांचे कि आखिर एथेंस के यूथ्स के हाथ में क्या जा रहा है, अच्छा जा रहा है या बुरा जा रहा है। अगर बुरा जा रहा है तो उसको अवॉइड कर दो, उसको ख़त्म कर दो। अगर अच्छा सोर्स ऑफ एजुकेशन जा रहा है तो उसको फ्लरिश करो। और स्पिरिट ऑफ जस्टिस इन आइडियल स्टेट, वन थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। Without justice, it is impossible to achieve the ideal state. It is impossible to achieve the ideal state. Ideal state, justice is like a Nehru. It is like a heart of his theory of his ideal state. क्यों? Because justice is due performance of duty as per as the need and aptitude of the person. So, what is justice? Due performance of duty as per as the dominant trait. अगर हम as per as the dominant trait ड्यूटी परफॉर्म ही नहीं करेंगे, dominant trait क्या हो गया? अगर किसी में रूल करने की कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसको रूल करना चाहिए, उसको सोल्जर क्लास में नहीं जाना चाहिए। अगर किसी को करेज का वर्च्यू ज़्यादा है उसको सोल्जर क्लास ज्वाइन करना चाहिए, ना कि रूलिंग क्लास में जाना चाहिए, वो अनजस्टिस होगा। तो अगर किसी में अर्ज ऑफ अर्निंग ज़्यादा है उसको प्रोड्यूसिंग क्लास में जाना चाहिए, ना कि रूलिंग क्लास में जाना चाहिए। अगर वो रूलिंग क्लास में जाएगा तो वो करप्शन करना शुरू करेगा। अकॉर्डिंग टू प्लाटो, अगर डोमिनेंट ट्रेड के अकॉर्डिंग अगर एक डोमिनेंट ट्रेड के अकॉर्डिंग वहाँ के सिटीजन काम नहीं करेंगे तो वो आइडियल स्टेट कभी क्रिएट हो ही नहीं सकता है। सो आइडियल स्टेट का क्रिएशन कैसे होगा? अगर सब अपनी ड्यूटी एज पर एज दियर डोमिनेंट ट्रेड परफॉर्म करेंगे। दैट इज व्हाट स्पिरिट ऑफ जस्टिस लाइज इन आइडियल स्टेट। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। पांचवा जो फीचर है क्लास डिवीजन इन द आइडियल स्टेट, ये अभी मैंने डिस्कस किया। क्लास डिवीजन दैट इज रूलिंग क्लास, सोल्जर क्लास एंड एपेटाइट क्लास। इसकी आइडियल क्लास में 3 क्लासों का होना बहुत ज़रूरी था एज पर एज दियर डोमिनेंट ट्रेड। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया स्पिरिट ऑफ जस्टिस, परफॉर्मिंग ड्यूटी एज पर एज दियर डोमिनेंट ट्रेड, तो जब प्लाटो को पता चल जाता था कि किसमें डोमिनेंट ट्रेड ज़्यादा है, मतलब किसमें रूल करने का ट्रेड ज़्यादा है, उसको फिर फंक्शनली ये स्पेशलाइज करता था। यानी कि उसको फर्दर ट्रेनिंग के लिए भेज देता था कि चूंकि फिलासफर किंग की अलग से ट्रेनिंग होती थी। और अगर किसी में वॉरियर क्लास का ट्रेड ज़्यादा था या करेज का ट्रेड ज़्यादा था, उसको 9 महीने, मतलब आज के दौर की 9 महीने की ट्रेनिंग जो होती है आर्मी क्लास की, तब कितने महीने की ट्रेनिंग थी गॉड नोज बेटर, शायद 2 साल की ट्रेनिंग होती थी, मैं भूल गया अभी। एनी हाउ, तो उनको फर्दर आर्मी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता था। तो जिसमें बिजनेस क्लास का ट्रेड ज़्यादा था उनको मतलब अकॉर्डिंग टू सम बुक्स की उनके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की। इट मीन्स कि उनकी भी ट्रेनिंग होती होगी। सो उनको आज के दौर के एमबीए के लिए भेज दिया जाता था। सो अगर हम फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे तो फर्दर ट्रेनिंग के लिए उनको भेज दिया जाता था। और एक फीचर है इसका कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड फैमिली। 2 क्लासों को ये प्रॉपर्टी, कम्युनिज्म मीन्स नो प्राइवेट
ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इज अलाउड। बट यहाँ ये फैमिली की भी बात कर रहा है, यानी कि नो प्राइवेट फैमिली इज अलाउड फॉर ओनली टू क्लासेस, फॉर ओनली टू क्लासेस, दैट इज रूलिंग क्लास एंड वरियर, हाँ वरियर क्लास। लेकिन प्रोड्यूसिंग क्लास को फैमिली और प्रॉपर्टी रखने की इजाजत थी। और इक्वल स्टेटस फॉर वीमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आइडियल स्टेट में, जबकि एथेंस में उस वक्त मतलब यू नो वीमेन्स वर नॉट प्रोवाइडेड एजुकेशन, बट इसके स्कीम ऑफ आइडियल स्टेट में इक्वल स्टेटस फॉर वुमेन है। women are considered at par with men. So women can also become soldier, women can also become philosopher queen with respect, with respect to men. So he gave equal status to women in his theory of ideal state. So status of children, स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन क्या था इसकी आइडियल स्टेट में, कि ये दो क्लासों के स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन की मैं बात कर रहा हूँ, रूलिंग क्लास एंड गार्डियन क्लास। इन दो क्लासों इनको बच्चे रखने की इजाज़त नहीं थी। दो हेल्दी कपल्स आके मैटिंग करते थे और हेल्दी बच्चा पैदा होता था, वो स्टेट रेज करता था। डैट वाज द स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन। जो भी बच्चा पैदा होता था वो बच्चा सबका कंसिडर किया जाता था, वो किसी एक माँ बाप का कंसिडर नहीं किया जाता था, और स्टेट उसको रेज करता था। फिर स्टेट देखता था उसमें कौन सा टैलेंट ज़्यादा है। अगर रूलिंग क्लास का टैलेंट ज़्यादा होता उसको फिलासफर किंग बनाया जाता था। अगर वॉरियर क्लास का ट्रेड ज़्यादा होता था तो उसको सोल्जर में डाला जाता था। अगर उसमें एपेटाइट का वर्चू ज़्यादा होता था तो उसको प्रोड्यूसिंग क्लास में डाल दिया जाता था। डैट वाज द स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन। क्या स्टेटस था? चिल्ड्रन टू बी रेज्ड बाय द स्टेट ओनली। सो दीज वर सर्टन फीचर्स ऑफ प्लाटोज आइडियल स्टेट। इसके कुछ क्रिटिसिज्म है। इट इज़ कंसिडर्ड एज टिरेनिकल, मतलब ये टोटलिटेरियन समझा जाता है इसका आइडियल स्टेट। वाई? इट इज़ क्योंकि इट इज़ रूल्ड ओनली बाय द फिलासफर किंग। जो फिलासफर किंग कहेगा वही लॉ समझा जाएगा। क्योंकि ये कहता था फिलासफर किंग जो है वो गलत नहीं हो सकता है, वो इनफैलिएबल है, वो उसमें किसी किस्म का एरर नहीं हो सकता है। सो इन दिस वे फिलासफर किंग कैन बिकम टायरेनिक इन नेचर। सो इसका फिलासफर किंग जो था उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता था। सो वन मैन रूल की ये बात कर रहा है यहाँ पे। सो इन दिस वे इट इज टायरेनिकल इन नेचर, इट इग्नोर्स लॉ। लाइक इसका जो डिसाइपल था अरिस्टोटल, उसने भी इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया है। उसने भी कहा है कि जो लॉ है, उसने कहा है लॉ इज रीजन। लॉ जो है एक कलेक्टिव रीजन है विदाउट पैशन। वो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल अगर एक ही बंदा रूल करेगा, कोई गारंटी नहीं है, वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज हो सकता है, लेकिन अगर वो लॉ के अकॉर्डिंग काम करेगा तो उस पे चेक लग सकता है, उसको पनिशमेंट मिल सकती है। सो उस पनिशमेंट के डर से वो कभी करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज होने से परहेज करेगा। सो दैट इज वाई इट इग्नोर्स लॉ। ये कहता था कि जो फिलासफर किंग कहेगा वही लॉ है। अगर मतलब लॉ फ्रेम किया जाता तो फिलासफर किंग टिरैनिकल नहीं हो सकता था और फिलासफर किंग करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज भी नहीं हो सकता था। सो इट इज उटोपियन। ये आइडियाज में ही है। उटोपियन मीन्स विच वी कैन नॉट अचीव, इट इज जस्ट इमेजिनरी। प्लाटोज आइडियल स्टेट कैन नेवर बी अचीव्ड। ये वी कैन से इट इज hypothetical in nature. Plato failed to achieve his theory of ideal state. So it is just theory, it is not fact. Because he tried to create the philosopher king, he tried to create the ideal state, but he failed. So it is imaginary only. His communism is not practicable. According to
Plato communism of family and property to be applied for two classes, that is ruling class and warrior class. Yes. So ये दो क्लासों को ये ना यू नो ना प्रॉपर्टी रखने की इजाज़त थी ना फैमिली रखने की इजाज़त थी, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हर एक को प्रॉपर्टी चाहिए होती है, एवरीवन लाइक टू हैव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी गिव्स द सेंस ऑफ अचीवमेंट, सो no one can deny the property to any person. So in this way it is ये practical नहीं है, because everyone wants to have property. So अगर हम फैमिली की बात करेंगे, ये कहता था फैमिली भी नहीं होनी चाहिए। अगर हम फैमिली की बात करेंगे, वी आर हैविंग फैमिली, वी आर इमोशनली अटैच्ड विद आवर फैमिली, ये इमोशंस को किल कर रहा था। सो नो वन विल एक्सेप्ट हिज थ्योरी ऑफ communism of family because of emotions. So it is impractical. ये कभी अचीव ही नहीं हो सकता है। In this way it is not practical because everyone is having emotions towards their family. So I hope ये आपको समझ आ गया होगा। क्यों? Because प्रॉपर्टी के साथ भी अटैचमेंट होती है और फैमिली के साथ भी अटैचमेंट होती है। प्रॉपर्टी के साथ सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, फैमिली के साथ सेंस ऑफ इमोशंस होते हैं। सो इन दिस वे ये कभी अचीव हो ही नहीं सकता है, ये प्रैक्टिकल है ही नहीं। इट इज़ अगेंस्ट डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, it is against democratic values because it kills the liberty, equality and all. So ये बात करता है सिर्फ फिलासफर किंग की। मेजॉरिटी ऑफ द चंक, उनके वाइस क्या है, फॉर एग्जांपल वो क्या रूल लाना चाहते हैं, वो किस किस्म का रूल लाना चाहते हैं, वो चीज़ ये इग्नोर कर रहा है। मान लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल माइट भी वो लिबर्टी चाहते होंगे प्लाटोज आइडियल स्टेट में, वो चाहते होंगे कि हमें फैमिली चाहिए, वो चाहते होंगे हमें प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन प्लाटो ना फैमिली रखने की इजाज़त देता है ना प्रॉपर्टी रखने की इजाज़त देता है टू क्लासेस को। इट मीन्स जो वॉइस ऑफ द पीपल है that is being suppressed in Plato's ideal state. In this way it is against democratic values. ये सिर्फ बात करता है फिलासफर किंग की, जो वो कहेगा वही ठीक है, जो लोग कहेंगे वो गलत है। क्यों? क्योंकि लोग दे आर नॉट मीन टू दे लैक रीजन। ओनली फिलासफर किंग जो है, ही इज द हाईएस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ रीजन। जो फिलासफर किंग कहेगा वही ठीक है, जो बाकी लोग कहेंगे वो गलत है, वो ठीक नहीं हो सकता, बिकॉज दे लैक रीजन। इन दिस वे इट इज़ अगेंस्ट डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, और ये मेजॉरिटी ऑफ द प्रोड्यूसिंग क्लास को यहाँ पे इग्नोर कर रहा है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।